Welcome back, my dear students. In the continuation of the concept of physics, today we will study some more concept in the kinematics, and especially we will study about the uniform motion in that. Already type of motion, plenty of things regarding that we have studied in a previous lectures. Now we will study few more concepts regarding that. One words I was using in the last topic, last video, point object, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन उठता है, ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्या कोई पॉइंट होता है जो हमें दिख नहीं सकता, ऐसा क्या? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर्स मोर डिस्टेंस देन इट्स साइज, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने साइज से अधिक डिस्टेंस कवर करता है, देन ऑलवेज वी से इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. एंड इट विल मूव, डेफिनेटली इट विल मूव मोर देन इट्स साइज. Or if it has moved more distance than its size, still mathematically we can say it is a point object. करता है या किया है या कर सकता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे अर्थ is rotating about an axis or also revolving around the sun. So for sun, what happened? Earth is revolving around the sun. Earth is a point object. Along with Earth, we are also rotating around the Earth, so that regarding Earth, we people as a point object. If a train is moving for 1000 kilometers, when it covered 1000 kilometers, for so that particular distance, train become point object. कार, इनिशियली कार वेरी बिग, बट इट हैज़ ट्रेवल्ड 1000 डिस्टेंस. अगर कार ने 1000 डिस्टेंस ट्रेवल कर ली तो उस डिस्टेंस से कंपैरिजन में वो क्या बन गया? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया. इस तरह हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं. जब वो अपने साइज से बहुत अधिक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट पार्टिकल इज नोन एज अ व्हाट? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट. एग्रीड? यस. Already we have studied what is called the scalar quantity and vector quantity. We want to go deep in that class regarding that, so you know. I will start about three more type of motion, that is one dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. What is one dimensional motion? नाम से लग रहा है one dimension में. We all know three coordinates are there. X, Y and Z. When any motion is satisfied or shown any one of the coordinate out of three, such motion is called what? One dimensional motion. तीन कोऑर्डिनेट में से अगर किसी एक कोऑर्डिनेट को ही मोशन सेटिस्फाइड कर रहा है या किसी एक कोऑर्डिनेट में ही वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है केवल एक डायमेंशन में, देन वी विल से द वन डायमेंशनल मोशन. जस्ट लाइक अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ यार्ड, ओके, ऑन इट्स रेल ट्रैक, ट्रेन इज मूविंग स्ट्रेट लाइन. इफ एनी नैरो स्ट्रीट वी आर मूविंग, वी कैनॉट मूव हियर एंड देयर, स्ट्रेट वी आर मूविंग. वन डायमेंशनल मोशन. So what is one dimensional motion? When any one of the coordinate is satisfied with the motion, or any object changes its position with respect to time in only one direction, one coordinate, such motion is called the one dimensional motion. If it is satisfying two coordinates, means that the change in motion and position is satisfied with the two coordinate x and y, x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑल्सो, उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन. जैसे इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन द सरफेस. इफ यू आर प्लेइंग द बिलियर्ड गेम, स्नूकर, डू यू नो ना? गेस सेठी वाज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ दैट. स्नूकर को मारते हैं तो बॉल ऐसे ऐसे टेबल पे राउंड करती है, एक्स में भी जाती है, वाई में भी जाती है. इंसेक्ट चलता है तो वह ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, एक्स में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है. वो
ऐसे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा. That is called the 2-dimensional motion. And what is called 3-dimensional motion? If all 3 coordinates is satisfied. It means if motion can be shown in all 3 coordinates, then such motion is called the 3-dimensional motion. जैसे विंड डिसीजन है, आप काइट फ्लाई कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, then it will go up, down, like that also. So in all 3 direction the kite can fly. That is a 3-dimensional motion. So regarding dimension, there is a 3 type of motion: 1-dimensional motion, 2-dimensional motion and 3-dimensional motion. 3 तरह के मोशन हमने पढ़ा यहाँ पे. अब जब मोशन की बात करते हैं तो कई फैक्टर्स आते हैं, जैसे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. One by one we will study about these topics. Okay, let's see. If you are seeing that what is called distance and what is called displacement. चलो भाई, एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे A, क्लियर. एक पॉइंट ले लेते हैं B. A से B पर जाना है तो हम ऐसे भी जा सकते हैं, पहले A से C पर जाएंगे फिर B पर जाएंगे, या डायरेक्ट हम A से B पर जा सकते हैं. 2 बातें हैं, या इस तरह जा सकते हैं या इस तरह जा सकते हैं. लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. जो एक्चुअल पाथ हम ट्रेवल करते हैं 2 पॉइंट के बीच में, दैट इज कॉल्ड द distance. Means length of the actual path traveled by an object is called what? Distance. SI unit is meter. माने जैसे चले, अगर एक जगह से दूसरे जगह में जाना तो रास्ते कई हैं, अलग अलग रास्ते से जाएंगे तो अलग अलग लेंथ भी ट्रेवल करते हैं. तो डिस्टेंस क्या हो सकती है 2 पॉइंट के बीच? डिफरेंट भी हो सकती है. कैसा रास्ता लिया है, कैसा पाथ लिया है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट ओनली. So the length of actual path traveled by an object is called the distance, and the shortest distance between final and initial position. Shortest distance between initial and final position is called displacement. So AB या AC plus CB, AC plus CB ये क्या कहलाएगा? Distance. And what would be AB? AB can be distance also, no problem, but shortest distance अगर हुआ, the shortest distance will be known as the displacement. The shortest distance is known as the displacement. ये एक एग्जाम्पल था. अब यहाँ देखो, जैसे आप you have to go from A to, you have to go from A and come back to A. A से B पे जाएंगे, C पे जाएंगे, D पे जाएंगे. दिस इज द एरो. A से B पे गए, B से C पे गए, C से D पर आए, फिर D से A पे चले गए. तो डिस्टेंस क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस TA, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. एंड व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. A से ही चले थे, A पे ही चले आए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गई, और डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. तो तुम्हें दिख रहा है डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है. AB को डिस्टेंस भी कह सकते हैं, AB को डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, बट ये इस बात की गारंटी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा. एक एग्जांपल और लेते हैं. सपोज दैट एक सर्कल लिया हमने, पॉइंट A से B तक जाना है. A से B तक 2 रास्ते हैं. एक रास्ता ये हो गया ऊपर से, एक रास्ता ये हो गया नीचे से. आइदर यू आर गोइंग फ्रॉम अपर पार्ट और लोअर पार्ट, यू हैव टू ट्रैवल circumference. And what is the value of this circumference? Half of 2 pi r. तो यहाँ से जाएंगे
तब भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, और यहाँ से जाएंगे तब भी डिस्टेंस पाई आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा भैया, डायमीटर। सो दैट डायमीटर वुड बी डिस्प्लेसमेंट एंड लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ विल बी नोन एज द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टिंग्विश करना हो तो हम कैसे करेंगे, हाउ विल बी डिस्टिंग्विश डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज displacement. Distance depends upon the path through which object has moved, and displacement don't depends upon the path, depends upon what, final and initial position. Distance neither can be zero or negative. Distance कभी जीरो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो अगर ट्रैवल करोगे तो कुछ न कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। डिस्टेंस नाइदर कैन बी जीरो नॉर नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी बताया मैंने आपको, डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मे इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज नॉट गारंटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस। बोथ हैविंग सेम एसआई यूनिट, मीटर एंड मीटर। तो बेटा बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस and shortest distance is called the displacement. I hope you understood what is called distance and what is called displacement. Now we will study one more important concept that is known as a speed. Yes, what is called a speed? Formula of speed is distance upon time. Yes, the ratio of a distance and time is called the speed. एक डेफिनेशन मिल गई, दूसरी डेफिनेशन भी मिल सकती है। अगर टाइम को 1 कर दें यहाँ हम यूनिट, तो स्पीड डिस्टेंस के इक्वल होगी, एक डेफिनेशन और मिल जाएगी। क्या, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज स्पीड, और डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड स्पीड। अब बेटा स्पीड is 3 type or basically 4 type, you can tell it. यूनिफॉर्म स्पीड, नाम ही लग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसी स्पीड जो यूनिफॉर्मली घूम रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों यूनिफॉर्मली, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? क्लास 9 यू हैव स्टडीड देयर। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द स्पीड। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल करती है बॉडी, हाउसो एवर द स्मॉल डिस्टेंस और टाइम इंटरवल में भी, चाहे जितना भी समय छोटा हो, जब जल्दी से भी कर रही हो, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ही आप समझ लो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल यूनिफॉर्म। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब if unequal distance is covered in equal time interval, unequal distance is covered in equal time interval, non-uniform speed या ununiform speed। यूनिफॉर्म क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। अब बात आती है एवरेज स्पीड की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज स्पीड। अब ये बताओ मुझे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है t1 टाइम में s1 ट्रैवल किया, t2 टाइम में s2 ट्रैवल किया, t3 टाइम में s3 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो एवरेज स्पीड जो होता है, फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। तो मानो s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश डैश डैश, मतलब द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखते होंगे एवरेज रन आते हैं बैट्समैन के, तो कितना इनिंग उसने खेला है, कितने रन बनाए हैं, डिवाइड होता है उस पर एवरेज स्पीड। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम लिया, जैसे कितना रन और कितनी इनिंग। सिमिलरली हाउ मच डिस्टेंस इट हैज़ कवर एंड हाउ मच टाइम इट हैज़ टेकन, दैट सच रेशियो इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड।
Now two things comes. What is the formula of time? Anybody? Time is equal to speed is equal to distance upon time. So time is equal to distance upon speed. So we could write this equation like that: s1 plus s2 plus s3 dash 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 upon, it is also written as s1 upon t1 plus s2 upon t2, because time is equal to distance upon speed, distance upon speed. So v1 v2 एटसेट्रा. चलो अभी दो की बात करते हैं, दो ही चीज़ ले लेते हैं, s1 s2. समझ में आया? बिकॉज टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर ये सपोज कर ले हम कि इसकी स्पीड क्या है? v है. ठीक है. अब मुझे एक बात बताइए सब लोग, अगर हम ये सपोज कर लें कि इसकी स्पीड कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं. अब ध्यान समझिएगा. इफ s1 इक्वल टू s2, इट मीन्स हर बार वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो ये क्या बन जाएगा जरा बताइए? s1 भी s बन जाएगा, s2 भी s बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? s अपॉन v हो जाएगा प्लस s अपॉन v हो जाएगा. यहाँ क्या आ जाएगा? 2s अपॉन s कॉमन, s कॉमन क्या बनेगा बताइए जरा? s यहाँ कॉमन हो गया बेटा, तो अब क्या बनाएंगे आप? s कॉमन ले लीजिए यहाँ पे. अगर आपको अलग अलग स्पीड लेना है तो अलग अलग स्पीड ले सकते हैं, कि अलग अलग टाइम उसने अलग अलग स्पीड ट्राई की, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. न्यूमेरिकल आएगा तो आगे हम लोग देखेंगे. ये v1 है, v2 है, इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा बताइए हमें? 2v1, अगर आप यहाँ देखेंगे एस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. इट मीन्स v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2. एस कैंसिल हो गया. पूरा फंक्शन क्या बनेगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. दैट इज द रिजल्ट. एग्री? बिकॉज अगर हमने ये मान लिया उसने क्या किया, अलग अलग टाइम पे क्या उन्होंने ट्रैवल किया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल किया विद कांस्टेंट स्पीड. तो वैल्यू जो आएगी डायरेक्ट, अगर न्यूमेरिकल में दिया है कि फर्स्ट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया, विद कितने स्पीड से ट्रैवल किया, v1 से किया, हाफ ऑफ जर्नी जो थी उसने v2 स्पीड से ट्रैवल किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? डायरेक्ट फार्मूला हम लगा सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये तो तब बात आई जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था. अब ये भी तो हो सकता है इक्वल टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ इस न्यूमेरिकल को हम कैसे कर सकते हैं? एवरेज स्पीड के बारे में बता रहा है. दैट आर द एक्सटेंशन ऑफ एवरेज स्पीड. ओके, लेट्स सी. थोड़ा इरेज इट. यस, चलिए अब बताइए मुझे फार्मूला क्या होता है. अभी हमने टाइम को चेंज किया, अब हमने स्पीड को चेंज करते हैं. फर्स्ट व्हाट आई हैव चेंज द टाइम, नाउ आई विल चेंज द स्पीड. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इक्वल टू yes, speed is equal to distance upon time. So distance is equal to speed into time. स्पीड इंटू टाइम. अब हम क्या ले लें बेटा? मानो v स्पीड है और कितने चला, टाइम लिया t1, तो vt1 प्लस vt2 इक्वल t1 प्लस t2. ठीक है, अंडरस्टूड. अब यहाँ अब हम क्या लेने जा रहे हैं देखना ध्यान से. अब यहाँ से हम क्या लेंगे? अगर v1 टाइम में उसने t1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, v2 टाइम में उसने t2 टाइम में v2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और हम ये सपोज कर ले अगर टाइम सेम है, टाइम सेम मीन्स t1 इक्वल टू t2, तो क्या आएगा देखो ध्यान से. सबको t मान ले. अगर हम t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t है, तो v1 प्लस v2, t कॉमन, और यहाँ क्या आएगा? 2t, t से t कैंसल, v1 अपॉन v2 बाई 2. अगर इक्वल डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड आ रही है तो फॉर्मूला क्या होगा? v1 बाई v2. और अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो v1 और v2 से, तो फॉर्मूला क्या आएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये दो तरीके हैं एवरेज स्पीड निकालने के. इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट, हाउ द थिंग्स हैज़ गॉन.
Based on this concept, we can get the value of a average speed. Understood how it is average speed? Simply formula is there, total distance upon total time. Conditions according to numerical, you will pursue the matter. Okay. Now we will study about the velocity. Yes. What is the formula of speed? I have told you in class 9 we have studied what is velocity. So velocity is equal to displacement upon time interval. So अगर टाइम इंटरवल को एक कर दे हम तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के. अगेन टू वे टू एक्सप्लेन दिस. द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी, और the displacement in a unit time interval is called velocity, or one more definition, distance ही displacement है या speed ही velocity, sorry, speed is a velocity when it is covered in a specific direction. एक और definition बनेगी किसकी? velocity की. when an object moves with a speed in a uniform direction, किसी यूनिक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अगर किसी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको भी वेलोसिटी बोलते हैं. या व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन, अब यहाँ देखो यहाँ तक तो डेफिनेशन स्पीड की हुई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. इफ अगर आई एम एडिंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन तो वही स्पीड क्या बन जाएगी? वेलोसिटी. कई डेफिनेशन है, जो समझ में आता है वो हम करते हैं. एग्रीड? सो व्हाट इज वेलोसिटी? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल इज वेलोसिटी, और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल को बंद कर दो भाई, और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी. तो वैसे ही बेटा हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम नॉन यूनिफॉर्म. और बात आती है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इसकी बात पहले कर लेते हैं. व्हेन यू आर रनिंग द कार और एनी बाइक, इज इट नॉट पॉसिबल दैट एवरी टाइम यू आर रनिंग विद सेम स्पीड? स्पीड में भी नॉन यूनिफॉर्म, मोस्टली इट इज नॉन यूनिफॉर्म. अब ये क्वेश्चन पूछ दिया कि पर्टिकुलर टाइम में आपकी स्पीड क्या थी किसी इंस्टेंट पे,